بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم انقلاب کی لہروں کو روکتے ہی رہو، تم انقلاب کی لہروں کو روکتے ہی رہو، اسی طرح تو یہاں انقلاب کریں گے۔ تمہیں نے چھیڑ دیا موت و زندگی کا سوال، اب اس سوال کے لاکھوں جواب اٹھیں گے۔ جو بیج بوئے تھے ماضی میں کاشتکاروں نے، وہ مر گئے تو نہیں ہیں جناب ابھریں گے۔ سامعین حاضرین، میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات سے اور خاص طور پہ کیونکہ ہم نے یہ جلسہ اس مرکزی چوک میں منعقد کر رکھا ہے، تو انسانوں کے حقوق سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ اب بات صرف اتنی اور مجبوری اتنی ہے کہ ہم وہ پیغام جو 11 فروری 1984 کو بہار جیل میں مدفون ہونے والے چاند سورج اس کی روشنی سے جو پیغام گزرا ہے، ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم وہ پیغام، وہ روشنی اور وہ دھوپ ہمیں جموں کشمیر ریاست کے کوچہ کوچہ گلی گلی محلے محلے میں وہ نور اور وہ روشنی بانٹنی پڑ گئی ہے۔ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ آپ نے مصروفیات زندگی کی ضرورتوں اور زندگی کی مصروفیات کے انتہائی دباؤ کے باوجود چند لمحے ہمارے لیے نکالے۔ مجھے شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ دراصل یہ جگہ کسی مفصل خطاب، تقریر اور گفتگو کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ دوستوں کے لیے، آنے جانے والوں کے لیے رکاوٹ ہے، مسائل ہیں، ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں صرف چند ایک باتیں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جناب قائد حریت محمد مقبول بٹ شہید کو بھارت نے پھانسی کے تخت پہ چڑھا کر شاید یہ تصور کر لیا ہوگا کہ یہ روشنی یہیں تک محدود رہے گی، معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن اسے کیا خبر تھی کہ یہ روشنی جو یہاں پہ ہم نے دفن کر دی ہے، یہ کوچہ و بازار میں آ نکلے گی۔ وہ خون جس کو ہم نے یہاں پہ بھیڑ چڑھایا ہے، وہ گلی کوچہ و بازار میں آ نکلے گا، اور اس سے نہ جانے کتنے جانسار ان کے قافلے جو ہیں وہ اس قافلے حریت میں شامل ہوں گے۔ میں مختصراً جناب مقبول بٹ صاحب کی جو فکر ہے، نظریہ ہے، میں اس پہ تھوڑی سی بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ جناب مقبول بٹ صاحب نے داستان حیات ان کی اتنی طویل ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ میں 1938 سے شروع کروں اور اس پار آنے کے بعد سچیت گڑھ پہ جا کے جو ریاست جموں کشمیر مادر وطن کی مٹی کو ہاتھ میں لے کر جو حلف اٹھانے کی بات ہے بٹ صاحب کی، وہاں سے شروع کروں تو گنگا ہائی جیکنگ کیس پہ آؤں، اور پھر وہاں پہ جو کچھ ان کے ساتھ لاہور کے کبا خانوں میں، مظفر آباد کے بلیک کورٹ میں اور دیگر جگہوں پہ جو کچھ ان پہ جو ان کے ساتھ گماشتوں نے شروع کیا، اس پہ بات کروں، یا جس طرح سے انہیں گنگا اغوا کیس کے ہائی جیکروں کی پیروی کرنے کے لیے، ان کی وکالت کرنے کے لیے، ان کے لیے لوگوں کو اس محاذ پہ، ان کی حمایت کے محاذ پہ کھڑا کرنے کے لیے جو کرنی پڑی، اس پہ بات کروں، یا پھر 1966 میں جب وہ مایوس ہو کے مقبوضہ کشمیر میں چلے گئے، گرفتار ہو گئے، وہاں پہ جو ہندوستانی سامراج کی صورتوں کا سامنا کرنا پڑا، اس پہ بات کروں، یا وہاں سے ظلم و ستم وہاں کا جو ہے وہ برداشت کرتے ہوئے جب وہ واپس اپنی مادر وطن میں لوٹے، جب وہ مظفر آباد پہنچے اور وہاں پہ یہ بلیک کورٹ کی جو تشدد ہے اور جو وہاں پہ جو ڈاکو تھے ان کے حوالے ان کو کر دیا گیا اور ان کے ساتھ جو بیتی، وہ کہانی آپ کے پاس بیان کروں۔ بھائی میرے پاس بیان کرنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ آج وقت کی نزاکت، وقت کی کمی، اور دوستوں یہاں پہ
क्योंकि मैंने पहले गुजारिश की कि बाकी लोगों को ये मसाइल आने जाने के जो पैदा हुए तो हमें मकसद इस पे बात करनी है। तो मैं ये गुजारिश करूँ कि मकबूल भट्ट साहब का जो नजरिया था वो ये था, वो 4 नारे हर तकरीर के आगाज में लगवाया करते थे और उनका नजरिया इन 4 नारों में ही मौजूद है। अगर आप समझ सकें, अगर मैं समझ सकूं, वो इस नारे इस तरह लगाया करते थे कि ये वतन हमारा है, इसकी हिफाजत हम करेंगे, इसकी खातिर हम लड़ेंगे, इस पे हुकूमत हम करेंगे। अब आप देख लें इन 4 नारों के बाद जो पीछे है वो क्या मफहूम और क्या बात रह जाती है, सारी बात इसमें सिमट आई। जनाब मकबूल भट्ट साहब का नजरिया ये था, पहली उन्होंने जब मकबूजा कश्मीर और आजाद कश्मीर में जो किसी के साथ और पाकिस्तान के बुरहानों में जो किसी के साथ हुआ, हुक्मरानों ने जिस तरह उनके साथ जो रवैया रहा था, इस सारे मंजरनामे को देखने के बाद उन्होंने 3-4 चीजें हद की थी। पहली बात जो उन्होंने हद की वो ये थी कि कश्मीर कश्मीरियों का है, कश्मीरियों का है, कश्मीर की आजादी की जंग सिर्फ कश्मीरी लड़ेंगे, कश्मीर की आजादी की जंग सिर्फ कश्मीरी लड़ेंगे। दूसरी बात उन्होंने यह हद की कि कश्मीर की इस वक्त जो ये आजादी का बेस कैंप जिसे होना चाहिए, ये बेस कैंप नहीं है, ये कारोबार का कैंप बन गया है। यहाँ के हुक्मरानों, यहाँ के ब्यूरोक्रेसी ने जो है वो इस्लामाबाद के साथ हाथ मिला लिए हैं और इस्लामाबाद वालों ने मसले कश्मीर को खत्म करने के लिए, कश्मीर को एज इट इज तकसीम करने के लिए, कश्मीर का तिया पांचा करने के लिए उन्होंने जो पॉलिसी 1947 में इख्तियार की, वही पॉलिसी आज तक चलती आ रही है। इस्लामाबाद ने आजाद कश्मीर में सिर्फ एक तेज खुर्शीद मरहूम ऐसे थे, वो रहनुमा थे जिन्होंने कश्मीर का केस दुरुस्त तौर पे अक़वाम आलम के सामने भी पेश किया, हुकूमत पाकिस्तान हिंदुस्तान के सामने भी पेश किया और इस ज़िम्मे में ये जो मौक़िफ़ होगा कि सबसे पहले कश्मीरियों की ये जो आज़ाद हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर के बेस कैंप की हुकूमत है, इसको रिकॉग्नाइज किया जाए ताकि हम इस रिकॉग्निशन के साथ दुनिया में अपना केस जो है वो वैलिड तरीके से पेश कर सकें। तो उन्होंने जैसे ही मुतालबा उन्होंने किया तो उन्हें अपने इक़्तिदार से अलग कर दिया गया। वो वही शख्सियत थे जिन्होंने कश्मीर के तशद्दुद की बात की, कश्मीर की सॉवरेनिटी की बात की, कश्मीर की केस की वकालत की। उसके बाद कोई दूसरा शख्स मकबूल भट्ट साहब के सिवा कोई दूसरा नहीं आया जो कश्मीर की बात करता, जो कश्मीर की इंडिपेंडेंस की बात करता, जो कश्मीर की आजादी की बात करता। वज़ारत अमूर कश्मीर जनाब मकबूल भट्ट साहब वज़ारत अमूर कश्मीर को इस सारी सूरत-ए-हाल का जिम्मेदार समझते थे। उन्होंने इस पे बड़ी तनकीद की, उन्होंने अपने जलसों और जुलूसों में वाज़ेह तौर पे इस्लामाबाद को पैगाम दिया कि आप ये 50 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक जो आप कश्मीरी सियासतदानों को खरीद के जेब में डाल रखा है, ये ना करो। ये जो इम्पोर्ट के लाइसेंस इनके हाथ भेजते हो, ये फिर कराची जाके भेजते हैं, फिर ये बैरून मुल्क भेजते हैं, इन्हें ये लालच की, ये पैसे की, हरस हवस की, जायदादें बनाने की, ये दौलत पसंदी की जो ये चाट है, ये ना लगाओ। लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। उन्होंने अपने दोस्तों को भी आवाज दी, उन्होंने देख लिया कि ये सूरत-ए-हाल मायूस कुन है और ये आजादी की जो सफर है, ये अपने खून की, अपनी जान की कुर्बानी दिए बगैर ये मंजिल हासिल नहीं होगी। उन्होंने अपने दोस्तों, अपने हल्के अहबाब को आवाज दी, कोई उनके साथ जाने को तैयार नहीं था सवाए रियाज गार के और हमीद भट्ट के। वो अपने उन दो साथियों को साथ लेके दोबारा मकबूजा कश्मीर चले गए, मकबूजा कश्मीर चले गए। हमारे बहुत सारे दोस्त इस बात पे तनकीद करते हैं, हमने बहुत रोका उन्हें जी, हमने उन्हें बहुत मना किया। भाई तुमने मना इसलिए किया कि तुम जो आज कर रहे हो ये सोच तुम्हारी तब से थी, तुमने उस वक्त मना इसलिए किया था कि उधर क्या रखा है, बच्चों को पालो पोसो जवान करो और वीजे लो और अमेरिका भेजो। आज तुम्हारे खानदान वहाँ पे अच्छी परवरिश पा रहे हैं। लेकिन याद रखो कि तारीख ने जो फैसला भट्ट ने किया, मकबूल भट्ट के लिए किया है, उस फ्रेम में कोई दूसरा शख्स जो फिट नहीं हो सकता। उसमें कोई दौलत पसंद, कोई इक़्तिदार का पुजारी, कोई लालची, कोई पैसे का फिक्र उसमें फिट नहीं हो सकता। वो फ्रेम ही ऐसी है जो आजादी पसंदों के लिए, जो इखलास वाले बंदों के लिए, जो इंसानों की गुलामी को खत्म करने के लिए अपनी जान कुर्बान करने वालों के लिए मखसूस है। उस फ्रेम में सिर्फ वही फिट हो सकता है और वो मकबूल भट्ट साहब ही उस फ्रेम में फिट हुए
और वही उसमें अच्छे दिखाई देते हैं। बात लंबी हो रही है, हम कोशिश करेंगे कि दिसंबर में ये जो कि LOC पे ये हमारा टाउन जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ये मौजूद है, हमारे लोगों ने किसी भी जिले खित्ते के मुकाबले में बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। पाकिस्तान की हिफाजत और दिफा के लिए इन्होंने अपनी जानें अपने माल कुर्बान किए। सो इनके साथ ये मुकाबला इनके सामने अपना केस हमें रखना जो है वो जरा तफसील से रखना होगा। उसके लिए हम जल्द ही इसी सेमिनार का जो एहतमाम करेंगे। मैं इसी पे इत्तेफाक करता हूँ। और आखिरी बात जो गुजारिश करना चाहता हूँ इस पूरे मजमे के तरफ से कि इस वक्त मसला कश्मीर इंतहाई खतरनाक मरहले में से गुजर रहा है। मैं आपको खबरदार कर रहा हूँ कि कश्मीर तकसीम होने के मरहले पे है। कश्मीर तकसीम होने के मरहले पे है। जुलाई 2019 में अगस्त जो अमेरिका का दौरा किया पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी लीडरशिप ने, उस दौरे के दौरान जो है वो इन दोनों ममालिक के दरमियान, इंडो पाक के दरमियान ये अंडरस्टैंडिंग, ये मकाम पंजाब पे करा दी गई है कि आप कश्मीर को जैसे ये है इसी शक्ल में इसको तकसीम होना है। वो हिस्सा तुम रखो और ये हिस्सा हम रखेंगे। ये बांग्लादेश वाला वो जो नारा था उधर को उस पे ही अब अमल दरामद होने जा रहा है। तो ऐसे वक्त पे हमें जो अनासर, जो कुव्वतें, जो मुबारक इस तकसीम में मुलव्वस हैं, हमें उन्हें खबरदार करना है कि वो ये ध्यान रखें कि अगर आप हमारे नीचे से जमीन खींचेंगे तो तारीख का सबक ये है कि जमीन आपके पांव के भी नीचे रहेगी, नहीं रहेगी। ये मुख्तर बात है जो मैंने आपसे गुजारिश करना थी। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। मर्दे को हुसार सुन आपके फूल चुन हम ना हो सर तेरा, दुश्मनों का तेरा और जारी रहे, जंग जारी रहे। देख ले तेरा चेहरा भी बाती तेरी, वो अरूसे शहादत से शादी तेरी, चाहता भी है तू फिर तेरी आरज़ू क्यों कवारी रहे, जंग जारी रहे।